क्वेश्चन क्या था आपका? The question is, I will just repeat it. Let's say I have an integer a equals to 10. I want to store the address of this a into a pointer. So I want to declare a pointer and initialize the address of a. What can be the syntax of the pointer? That is what I want. Is it clear? I want to store this element, this variable address into a pointer. I want the syntax of the pointer. How can we declare and initialize a pointer? That is what I want. अरे मोटा मोटा दो तीन चीजें तो रहती है उसमें, एक डेटा टाइप रहता है, एक एस्ट्रिक रहता है, नेम रहता है पॉइंटर का, इनिशियलाइज कर दो. अरे आ गया आंसर, सॉरी. सो हम कैसे डिक्लेयर करते थे पॉइंटर? सो अनिशा ने कहा एस्ट्रिक ए pointer. You have Anisha, you have missed with the data type. You haven't specified the data type. Sony int asterisk a pointer is equals to ampersand a. That is right, but I should be small. ठीक है ना? You have also Parija has also missed the data type, and we have also missed the data type. Data type, it is important. Can I do it something like this? Will I be able to do something like this? If the if the if the data type of the variable that I want to store, whose address I want to store into pointer, if that is int and the data type of the pointer is float, so will I do No. will I be able to do that? No. Why? सेम डेटा टाइप होना चाहिए. सेम डेटा टाइप होना चाहिए. उसका यूज क्या रहता है? लेट्स से अगर यहाँ पर फ्लोट है, यहाँ पर इंट है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग, राइट? अगर यहाँ पर इंट है, यहाँ पर फ्लोट है, तो इसका एक पर्पस क्या है? ये कंपाइलर को बताता है कि अगर नेक्स्ट टाइम इफ यू आर इंक्रीमेंटिंग और इफ यू आर ट्राइंग टू ऐड वन मोर एड्रेस, one more value to the address. Let's say if I do something like this, so ये एड्रेस कितने वैल्यू से इंक्रीमेंट होगा? एक वैल्यू से, या फिर 4 वैल्यू से, या फिर 8 वैल्यू से? अगर ये डेटा टाइप रहता है, if it is float, will it increment by, the address will increment by 1, will it 4. increment by 4? This is 8. float, this is float, this is, it will increment by 8, but the data type of the variable that is int, right? And I'm incrementing the thing by 8 because what it is contradicting my point that integer needs to allocate the 4 bytes memory, but I'm allocating it 8 byte memory, right? So it is contradicting my this point. So we are going against the rules, we are going against the compiler, which is not allowed, right? So compiler doesn't allow these things. It says कि भाई अगर यहाँ पर if you are specifying int, it is compulsory, it will throw us the error if you write float over here, right? We have already seen this thing, right guys? Yes. Yes. Yeah. So we have already seen these things, right? Let's say in case of array, if you are having an array, let's say int r is equals to 1 2 3 4 5. We know what will be the size of the array. 5. 20. 5 will be the size. 5. Space will be 5 into 20. Yeah, that will be the space, right? The address will be stored in what? The address will be stored in what? Array. Array will represent the address of the base element. Yes. जल्दी से बोला करो yes or no, ठीक है ना? So array will store the base address. Let's say I want to initialize this address of the array to some other variable. Let's create it for an instant. Int asterisk array address is equals to what? It should be ampersand array, or it just be array. Just array. Just array. Ampersand. Ampersand array किसने कहा? And why?
We have discussed this thing. We have spent at least 15 to 20 minutes in the previous lecture. Why we are not saying it as ampersand array? Because this thing is already holding the address of the array. We cannot use ampersand over here. Ampersand is used when we are storing the normal variable address, right? अरे हाँ या ना? Yes. Yeah. So we don't have to use the ampersand, right? So the address will be stored in array add, right? And what if I make it over here instead of just simply storing the address? Instead of that, I make it as a const. What I'm doing, I'm making this address as a const. So what will be the restrictions that will be added to this array address now? You cannot change the It value can't be or updated. We cannot update it. yes, address can be updated. Yeah, you cannot update the what? Address. 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 You will not be able to change the address, right? But what will be, is that the same thing with the values? No. 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 In case of values, you can No. change the values, you can modify the values, but with the address you won't be able to do that. The address will be fixed, you won't be able to change that from the memory, right? Getting the thing? This is what we saw about pointers, right? So pointers का हमको पता है कि बेसिक अगर वेरिएबल टू पॉइंटर स्टोर करना है तो वी ऑलरेडी नो दैट कि सिंपली अगर मेरे पास एक int a है, if we have int a is equals to 10 and we want to store the address of a into a pointer, right? So how will we do it? Simply specify the same data type, asterisk, and the name of your pointer. So let's say that aptr and I'm giving the address of a. This is the basic things already see, ठीक है ना? Let's say मुझे इस पॉइंटर का एड्रेस मुझे एक और पॉइंटर में स्टोर करना है, तो हाउ विल आई डू इट? जस्ट राइट डाउन इन दिस मैसेज, पॉइंटर टू पॉइंटर देखा था हमने, 2 एस्टेरिस्क, याद करो, एंड जस्ट राइट डाउन द सेम थिंग इनटू द चैट. Have you all got the question? I want to store the address of the pointer. हमने वेरिएबल का पहले पॉइंटर में स्टोर किया है, फिर उस पॉइंटर का हमको एक और पॉइंटर में स्टोर करना है, पॉइंटर टू पॉइंटर. जल्दी, जिसको ओरली आता है वो ओरली कहो, जिसको चैट में पसंद है चैट में कहो. Int asterisk b is equals to aptr. You are missing a lot many things, Shreyank. Yes. Try to think more. अरे सब भूल गए क्या यार? मतलब ऍड्रेस स्टोअर करायचा ना, ऍड्रेस पॉइंटरचा ऍड्रेस स्टोअर करायचा. स्वप्नीलने काय म्हटलंय? श्रांक नंतर अनिशाने इंट एस्ट्रिक ए पॉइंटर इज इक्वल टू अनिशा का राइट है. शालू it should be, there should be 2 asterisks because we are storing pointer to pointer, not variable to pointer, right? And asterisk ptr में नहीं आएगा, it should be ampersand, right? स्वप्निल का ampersand मिसिंग है, यहाँ पर array की बात नहीं कर रहे हम, वेरिएबल की बात कर रहे हैं, ampersand लगेगा. तन्वी एक asterisk मिसिंग है, int p is equals to, नहीं गलत है तन्वी का. सोनी का एस्ट्रिक मिसिंग है, सब में एस्ट्रिक मिसिंग है, गलती कर रहे हो, ठीक है? तो या दिस इज, वी विल जस्ट ट्राई टू कोड इट, लाइक लेट्स मेक इट ऑल क्लियर टू यू ऑल. सो लेट्स सी हैश include string using namespace std int main, and I have int a is equals to 10. I'm storing this address of int
a is equals to 10 in some other variable. Let's name it as asterisk a ptr is equals to ampersand of a. ठीक है, if I just see out a ptr, so it will be just giving me the address of a. ठीक है, if I just run the code, it will give me the address of a. ठीक है ना, so the ending is FF08, just remember it. The next thing that comes is, what if I try to print something like this, see out asterisk of aptr, what this will return me? Value. 10. That is 10. 10, right? What are we doing here? What is this thing called as? Dereference. Exactly, this is called as Yes. dereference. Yeah. ठीक है, ठीक है, right. Now I wanted to store my question is that I wanted to store the address of this pointer into another pointer. So how will we do that? Int Asterisk. asterisk Int correct. A B. underscore PTR, which is A- equals to हाँ, ampersand A is underscore PTR. exactly. This is how it will look. Is it fine, guys? Yeah. Let's try to print out what it returns. What it returns actually. Let's try to print out. I will see outing. See out a ptr, and I want an endl statement at the end. As such, not necessary, but it will come in future. So yeah, I'm getting the address of the pointer aptr, right? So is it clear that we are just in the first statement we print out this address of this a variable? In the second, this is not necessary, this is basically printing the value of a. Okay, and in the next line we are printing the address of this pointer which is holding the value of, which is holding the address of the value 10, right? Is it clear? Yes. इजी है, ऑलरेडी देखा है, इसमें कुछ अभी दिमाग लगाने का काम नहीं है. ठीक है, यहाँ पर हम दिमाग लगाएंगे अभी इसको क्या करने में, डी रेफरेंस करने में. ठीक है, डी रेफरेंस अगर मैं सिंगल एस्ट्रिक यूज करता हूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्रिंट आउट a ptr, so what this will return me, I'm just dereferencing by 1. एक ही हायरार्की से मैं इसको डीरेफरेंस कर रहा हूँ. सोचो क्या प्रिंट होकर आएगा मुझे? Address of A. जो नई वैल्यू आएगी ना, यहाँ पर जो हम बी की जो मॉडिफाइड वैल्यू रहेगी वो आएगी. एक बार सोचो, तुम एक बार फिर से सोचो. मैं एस्ट्रिक यूज नहीं कर रहा, उसको डीरेफरेंस नहीं कर रहा, तो ये क्या रिटर्न कर रहा था मुझे? पहले ऑलरेडी एड्रेस रिटर्न कर रहा था. किसका? पीटीआर का. ए पीटीआर का एड्रेस रिटर्न कर रहा था, राइट? यस. अगर मैं एस्ट्रिक लगाता हूँ तो उस एड्रेस पर जो वैल्यू है वो मुझे रिटर्न करेगा. हाँ, मतलब मॉडिफाइड वैल्यू जो भी रहेगा. मॉडिफाई कहाँ से आया इसमें? देखो, मतलब जो ए, हाँ बात बताओ. जैसा कि हमने इसमें देखा था इस वाले एग्जांपल में कि हमें अगर सिर्फ हम ए पीटीआर करते थे तो हमको एड्रेस मिलता था ऑफ ए, राइट? एंड इफ आई एम यूजिंग एस्ट्रिक ए पीटीआर, दैट मींस आई एम डीरेफरेंसिंग. उस एड्रेस पर जो वैल्यू है वो मुझे रिटर्न होगी. तो ए की एड्रेस पे 10 वैल्यू थी तो हमको 10 रिटर्न होगी, राइट? सिमिलरली यहाँ पर ए पीटीआर पर वैल्यू क्या है? एड्रेस ऑफ ए पीटीआर. इज इट राइट? Yes. यस. Yes. एड्रेस ऑफ एपीटीआर है. तो इसको अगर मैं प्रिंट करूंगा तो ये मुझे क्या देगा? एड्रेस ऑफ एपीटीआर. अगर मैं एस्ट्रिक लगाऊंगा, इफ आई एम डीरेफरेंसिंग द थिंग, दैट मींस आई एम ट्राइंग टू एक्सेस द वैल्यू that has been there inside that aptr.
तो यहाँ पर हम इस चीज में तो उसका सिर्फ एड्रेस प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर मैं एस्टेरिक लगाऊं तो उस एड्रेस पर वैल्यू प्रिंट होगी, उस एड्रेस पर जो भी वैल्यू है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ओवर हियर? A का एड्रेस। एग्जैक्टली राइट। तो अभी मुझे क्या प्रिंट होकर आएगा, A का हाँ एड्रेस। समझ गया। तो यहाँ पर आपको दो चीजें रिपीट होते हुए देखेंगे। इफ आई विल जस्ट शो इन द आउटपुट, देखो दो एड्रेस हमको सेम मिल रहे हैं, किसके किसके, APTR के एस्ट्रिक APTR के, दोनों के एड्रेस सेम है। सो आई एम एबल टू रिलेट द थिंग। यस या अगर मैं हाँ एस्ट्रिक 2 करता हूँ, लेट्स से मैं 2 बार उसको डीरेफरेंस करता हूँ, APTR PTR। अभी मुझे क्या आएगा, अभी क्या ये वाला आउटपुट, ये लेट्स से ये वाला आउटपुट एंड जो लास्ट में अभी मैंने लाइन प्रिंट करी, ये दोनों आउटपुट सेम आएंगे। Yes. Yes. It will be 10, right? Yes. So I'm getting the value as 10. Is it clear? Yes. These are the things we have already seen. So yeah. और क्या कर सकते हैं हम, हाँ अगर मुझे इस पॉइंटर को कांस्टेंट बनाना हो तो मैं कैसे करूँगा? लेट्स से आई वांटेड टू मेक दिस पॉइंटर एज अ कांस्ट पॉइंटर सो दैट वी कुड नेवर मॉडिफाई इट इन द फ्यूचर। कैसे कर सकते हैं हम इस चीज़ को? Const keyword. Const ऐड keyword- करना है। लेट्स से इसको मॉडिफाई करके बताओ। अगर मेरे को इस पॉइंटर को कॉन्स्ट बनाना है तो राइट डाउन इन द मैसेज कि मैं इसको कॉन्स्ट कैसे बना सकता हूँ, वेयर आई विल हैव टू ऐड द कॉन्स्ट कीवर्ड। write down in the chats। क्वेश्चन, मैं करण को क्वेश्चन पूछता हूँ तुम सबको, करण मुझे क्वेश्चन पूछता है। अरे अरे मतलब वही एस्ट्रिक के पहले लगाएंगे ना, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ही Asterisk वही के था बाद। ना, मेरा क्वेश्चन ही वही था करण। हाँ तो अरे मतलब मैं follow कर बता रहा हूँ, ऐसे वो क्वेश्चन मार्क गलती से चला गया, वो डिलीट भी नहीं हो सकता ना। भाई गलती से कभी किसका क्वेश्चन मार्क गया है? कह रहे मेरा तो नहीं जाता यार। अरे मतलब वो टेक्सटिंग की आदत है ना, क्वेश्चन मार्क ज्यादा करता हूँ, समझ जाओ ना। ओके प्रणव जस्ट वेरीफाई इट वंस अगेन। लेकिन बराबर था ना एस्ट्रिक के पहले? नहीं तो मतलब ऐसे इंट, हाँ सबने गलत दिया है यार कि मैं ही गलत हूँ? सभी ने गलत दिए। एस्ट्रिक के बाद आएगा। नहीं अनिशा ने राइट दिया है, बाकी सबने गलत दिया है। हाँ सबने गलत दिया है। दैट मीन्स रिवीजन की कहीं ना कहीं कमी है। ठीक है रिवाइज का सेशन है तो रिवाइज ही करेंगे बेसिकली। ओके सो आई गेस you all might be wrong or I can be wrong. Let's see who's wrong. Okay, so I will try to specify the cons keyword over here. If it is right, then it is right. If it is wrong, and then it is wrong. Let's see, but I guess it is right. Let's try to see out the address. It will return me the same address. No, there will be no change in the address. So yeah, let's try to print it. It will be something at the end 08, no? 04. 08. It is returning me the same address. So you have to use the cons keyword after the asterisk. Remember this thing. If I try to use it before, let's try to say if it works or not works. And if I run the code, aha, wow, it works. Okay, but let's try to verify. Let's try to verify. Is it working in the same way that we want to work it, or is it just for the formality? Let's try to see that also. I wanted to modify the address now. So how can I do it? I can do something like a plus plus. No, I will have to modify the address now. So the address is APTR. A plus plus. If this gives me the right output, that means the address should modify by it's already 08. So it should become 0C, right? 0C it will become at the end address of PTR. Yes. Yeah.
Let's try to see. Yes. Are we able to get the thing or not? It's becoming 0C, yeah. But I have initialized it as a constant. Now let's check it out one more time. Yeah. So now you cannot do it. So जिन भी लोगों को लगता था कि ऐसा भी हो रहा है सर जी तो ऐसा नहीं हो सकता. अगर मैं ऐसा करता हूँ तो वी आर एबल टू मॉडिफाई इट, बट कॉन्स का काम ही वही है ना, हमको मॉडिफाई नहीं करने देना. दैट इज व्हाई वी हैव टू यूज इट आफ्टर एस्ट्रिक. आर यू गेटिंग द थिंग गाइस? अभी अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ तो दिस विल शो मी द एरर. इज इट क्लियर? Yes. 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 Yeah. So this is the use of const keyword, and now we'll see the things in array because we are dealing with arrays. But before dealing with arrays, you should have the basic things of variables, how the pointers, cons, this and this things works in basic variables, and then only will be able to understand the after things, that is arrays. We are missing one more thing over here. We haven't discussed about डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन. दैट मीन्स स्टोरिंग द वेरिएबल्स. एरेज का बाद में देखेंगे. बाद में मतलब अभी देखेंगे. हमने वो नहीं देखा कि हीप के अंदर कैसे स्टोर करते हैं. अगर इफ आई वांट टू स्टोर अ वेरिएबल इनटू हीप, दैट वी हैवंट सीन ना, तो उसको भी देख लेते हैं. किसको याद आ रहा है कि अगर मेरे को लेट्स से आई वांट, वी कैन नॉट डू इट लाइक दिस ना. हमको पता है कि हम int a = 10 नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो ऑलरेडी जाकर स्टैक में बैठ जाएगा, राइट. हमको हीप में चाहिए. तो हीप के अंदर अगर मुझे ये वेरिएबल स्टोर करना है तो सबसे पहले मुझे क्या लेना होगा? हीप से क्या मांगना होगा? Address. एड्रेस, राइट. हमको सबसे पहले हीप से एड्रेस लेना होगा. तो कोई बता सकता है? ओरली बताओ या फिर चैट में डाल के बताओ कि एड्रेस कैसे हमको लेंगे हम हीप से. किसको याद आ रहा है? int asterisk address is equals to new int. int asterisk address is equals to new. Absolutely right. This is how we do it, right? Hello. Yes. Yes. A question here comes is like, ये एड्रेस क्या स्टोर करेगा आप? बोलो, एड्रेस के अंदर क्या स्टोर होगा? यहाँ पर लेट्स से मैं यहाँ Value पर store. गलत. यहाँ पर मैं लेट्स से इस इंटीजर के अंदर 10 वैल्यू स्टोर करता हूँ, तो एड्रेस के अंदर क्या स्टोर होगा? 10 स्टोर होगा. No. एड्रेस का मतलब क्या है? एड्रेस के अंदर एड्रेस स्टोर होगा. Base of the address. बेस यहाँ पर एरे की तो बात हो नहीं रही, तो बेस तो आया नहीं. एक एलिमेंट के बाद Address of 10. एड्रेस ऑफ 10, बेसिकली एड्रेस ऑफ 10 स्टोर होगा. क्लियर रखो फंडे. एड्रेस हमने इसलिए तो उसको एड्रेस नाम दिया है ना, वैल्यू होता तो वैल्यू देते हैं. एड्रेस का वही मतलब ही वही है कि हम उसमें उसके अंदर एड्रेस स्टोर कर रहे हैं हमारे हीप मेमोरी के अंदर का. जिस एड्रेस पर हमको वैल्यूज भेजनी है उस हीप मेमोरी के अंदर उसका एड्रेस है हमारे पास. जिस जगह पर खत भेजना है उस जगह का एड्रेस है. वो एड्रेस के थ्रू हम खत भेजेंगे या फिर वैल्यू भेजेंगे, जो कि कहाँ पर जानी है? हीप के अंदर. ये चीज क्लियर है. सेकेंड क्वेश्चन कम्स इज कि ये जो एड्रेस पॉइंटर है ये भी किसी ना किसी मेमोरी के अंदर स्टोर होगा. तो ये कौन सी मेमोरी के अंदर स्टोर रहता है? हीप या फिर स्टैक? Stack. Stack. एग्जैक्टली, स्टैक के अंदर स्टोर रहता है. और ये जो वैल्यू स्टोर रहती है ये किसके अंदर जाती है? Heap. हाँ, अभी थोड़ी थोड़ी चीजें. एग्जैक्टली. तो यही कुछ बेसिक चीजें हैं. इसी तरीके से हम चीज़ों को डिक्लेयर करते हैं किसके अंदर? हीप के अंदर. इवन आई कैन डू समथिंग लाइक दिस ऑल्सो कि बाबा एड्रेस के अंदर जाकर 10 स्टोर हो जाओ. हम कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं. और प्रिंट करना होगा तो एड्रेस तो मेरे को एड्रेस प्रिंट करके देगा किसका? हीप का. ठीक है. तो दिस विल गिव मी द एड्रेस प्रिंटेड which is something like this, and if I just print the value it will be, of course it will look something like this, and that will give me the value.
इज इट क्लियर? Yes. 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 ये जो पहले जिसने भी यस कहा ना वो बहुत ही सुर में कहा यस। ठीक है, नेक्स्ट थिंग पर मूव किया जाए या फिर अभी तक किसी को कुछ भी डाउट है? इसके बाद ये चीज़ें रिपीट बहुत कम होगी, रियली रिपीट होगी ये सारी बेसिक चीज़ें। सो आज का सेशन इसीलिए रखा है कि अगर कुछ भी लगता है आपको कि इस पॉइंट पर ये थोड़ी चीज़ों को और टाइम देना चाहिए, फिर इसको थोड़ा और इन डेप्थ में लेके जाओ, तो हम वो कर सकते हैं इफ यू वांट। हेलो, अरे बोलो। आज काफ़ी स्लो जा रहा है सेशन क्योंकि आने वाले 3 दिन कंटिन्यूअस सेशंस रहेंगे, तो उसके अंदर अगर स्पीड बढ़ानी हो तो आपके प्रीवियस फंडे क्लियर चाहिए। दैट इज द अल्टीमेट एम ऑफ टुडे सेशन। आई ऑल्सो हैव सम क्वेश्चंस बट लेट्स मेक इट फर्स्ट। पहले वाला तो क्लियर कर ले तब जाकर क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे जा सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सो एरेज का आता है नेक्स्ट। ठीक है, अभी हम सेम चीज़ें एरेज पे देखेंगे, कॉन्स कीवर्ड देखेंगे, उसके बाद हीप का देखेंगे। ये 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें, बाकी सारी तो हमने पॉइंटर्स का थोड़ा एरे में देख लिया ऑलरेडी। तो अगर एरेज की बात करते हैं, ठीक है, तो हमको पता है कि अगर मेरे को लेट्स टॉक अबाउट डिक्लेयरिंग एन एरे इनटू दी हीप। हमको हीप के अंदर एरे को डिक्लेयर करना है या फिर इनिशियलाइज करना है या फिर स्टोर करना है। डिक्लेयर और इनिशियलाइज से अच्छा स्टोर करना है हमको हीप के अंदर। तो कैसे कर सकते हैं? कैन एनीबॉडी जस्ट टेल मी द सिंटैक्स? हीप के अंदर एरे स्टोर करना है एंड लेट्स मेक इट अ कॉन्स्ट। वो एरे को हमको कॉन्स्ट बनाना है और उसको हीप के अंदर स्टोर करना है। तो सबसे पहले तो एड्रेस लगेगा। सिमिलर चीज, सिमिलर तरीके से सोचो। एड्रेस Int, लगेगा asterisk, 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 const, const, address, एड्रेस, राइट। उसके बाद square bracket. स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर नहीं आएंगे, ये तो पॉइंटर है ना बेसिकली। एड्रेस क्या है आपका? पॉइंटर हाँ, है। point. इसको हम एरे भी कह सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि एरे के अंदर भी हम वैल्यूज तो स्टोर करते हैं, बट जो एरे कीवर्ड रहता है उसके अंदर तो एड्रेस रहता है, तो उसको हम एरे भी कर सकते हैं। इंट एस्ट्रिक कॉन्स्ट एरे, यहाँ पर ये एड्रेस स्टोर कर सकते हो, तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं आएंगे। इट शुड बी इक्वल्स टू, उसके बाद New, न्यू। टाइप क्या रहेगा एरे का? int. और उसके बाद साइज। ऐसा ही रहता है। Okay. दिस इज हाउ वी डू इट। Yes. सो ये होता है डिक्लेरेशन ऑफ द एरे, राइट? इनटू वेयर? इनटू योर हीप मेमोरी। Heap. अभी इसके अंदर हमको वैल्यूज भी डालनी रहती है, तो वैल्यूज हम फॉर लूप की हेल्प से डाल सकते हैं। फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 0, i शुड बी लेस देन 10 एंड i प्लस प्लस। तो इसके अंदर वैल्यूज डालने के अभी 2 तरीके हो सकते हैं। मतलब एक तो हमने जो वेरिएबल के अंदर पढ़ा है कि इट शुड बी समथिंग लाइक दिस, एस्ट्रिक एरे and asterisk array, it should be something like this, asterisk array or I guess I, एक ये तरीका रहता है। why is it giving me an error? plus I, हाँ, asterisk array plus I. right, asterisk array plus I, this is how we do it. तो इस वाले केस में क्या होगा, हमको पता है कि तब भी एरर क्यों आ रहा है। asterisk बाहर आएगा ब्रेसेस। एग्जैक्टली, या सो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, लेट्स से इसको
बेसिकली कुछ ऐसा करते हैं कि स्टार्टिंग में इसको समझने के लिए व्हाट वी विल डू, वी विल क्रिएट एन एरे int arr is equals to let's give it 1 2 3 4 5, ठीक है। और इसके साइज में मैं एक्सप्लिसिटली यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ, उसका भी रीज़न है। तो अगर देर आर टू वेज टू एक्सेस दिस एरे, फर्स्ट इज वी कैन डू इट समथिंग लाइक दिस, एरे ऑफ जो भी आपको इंडेक्सिंग देने हम डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं, राइट। अगर मैं अभी प्रिंट करूंगा तो मुझे क्या प्रिंट होकर आएगा, 1 आएगा, ठीक है। एंड देयर इज वन मोर वे टू एक्सेस दिस वैल्यूज, दैट इज यूजिंग asterisk, राइट। I can also access the values using asterisk, something like this। अगर मैं ऐसा करूंगा तब भी मुझे क्या प्रिंट होकर आएगा, 1, राइट। तो अगर नॉर्मली हम इंडेक्सिंग से जाते हैं तो हम कुछ इस तरीके से जाते हैं। हमने 0 का देख लिया, लेट्स से मुझे नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट करनी है, लेट्स से आई वांट टू प्रिंट द वैल्यू दैट इज प्रेजेंट ऑन माय फर्स्ट इंडेक्स। हाउ विल आई डू इट, हियर आई विल हैव टू स्पेसिफाई द इंडेक्स एज 1, राइट। Yes. Yeah, so that will return me what? It will return me to, उसी तरीके से अगर मेरे को नेक्स्ट और एक एलिमेंट चाहिए, मतलब थर्ड पोजीशन दैट मीन्स सेकंड इंडेक्स पर मुझे जो वैल्यू चाहिए दैट इज 3, अगर वो प्रिंट करना हो तो मुझे नेक्स्ट मतलब यहाँ पर इंडेक्सिंग यहाँ की 2 स्पेसिफाई करनी होगी, राइट। इसी तरीके से हम एक एक इंडेक्स बढ़ाते जाते हैं, राइट। उसी तरीके से इन द सिमिलर पैटर्न अगर मैं एस्ट्रिक यूज करता हूँ यूजिंग द इंडेक्सिंग इंस्टेड ऑफ यूजिंग द इंडेक्सिंग, अगर मुझे एस्ट्रिक यूज करना है, सो आई नो ये मुझे पहले पोजीशन का एलिमेंट रिटर्न करेगा। एस्ट्रिक एरे विल रिटर्न मी द एलिमेंट दैट इज बीन प्रेजेंट एट माय बेस एड्रेस, द फर्स्ट पोजीशन, राइट। अगर मैं इसके अंदर +1 करता हूँ तो ये इंक्रीमेंट करेगा मेरा एड्रेस, नॉट माय एरे। ये मुझे नेक्स्ट एड्रेस प्रिंट कर देगा, मतलब फर्स्ट का अगर लेट्स से वो 04 एड्रेस है तो ये मुझे 08 एड्रेस प्रिंट कर देगा। लेट्स ट्राई टू सी आउट, जो ऑलरेडी देख लिया हमने ऑलरेडी, बट स्टिल वी विल सी इट वंस अगेन, एरे एंडल, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो इस वाले केस में क्या आएगा, ये मुझे प्रिंट करेगा बेस I'm missing something, let me clarify the things। ये मुझे प्रिंट करेगा एड्रेस, ठीक है। लेट्स वेरीफाई इट, बेस एड्रेस प्रिंट करेगा, राइट। अगर मुझे नेक्स्ट एड्रेस चाहिए, इस एड्रेस के बाद में का एड्रेस चाहिए, तो व्हाट विल आई डू, मुझे इस एड्रेस के अंदर +1 करना होगा। तो फिर वो क्या देगा मुझे, नेक्स्ट एड्रेस। इतनी जल्दी ऐसे मत कहा करो क्योंकि चीजें रॉन्ग भी हो सकती है। किस तरीके से, ये थोड़ी कंफ्यूजिंग चीज है। अगर मैं एरे +1 करता हूँ तो इस वाले केस में मुझे क्या लगता है कि एरे का एड्रेस ऑलरेडी ये है, ठीक है ना। तो इस वाले केस में एक बार देख लेते हैं, कंफर्म ही कर लेते हैं ना। FC के अंदर 4 ऐड करो तो क्या होता है, ओके ये तो नहीं होता है, बेसिकली होता है क्या है, C के अंदर 4 ऐड करेंगे तो क्या होगा, D E F, ठीक है, D E F हो जाएगा। और F के बाद क्या आता है, F के बाद डायरेक्टली 0 आता है, राइट। तो 0 नहीं आना चाहिए था यहाँ पर, मुझे तो भी ऐसा लगता है। रिफ्रेश करेंगे तो नहीं होगा। Let's try to do something like this। ये मुझे नेक्स्ट एलिमेंट प्रिंट करके देगा, ये चीज मुझे नेक्स्ट एलिमेंट प्रिंट करके देगी। If I try to print it out, yeah, it is giving me the next element print। मतलब कि प्रीवियस केस में डायरेक्टली एरे मुझे एड्रेस प्रिंट करके दे रहा था, जब मैं एरे +1 कर रहा था तो मुझे नेक्स्ट एड्रेस प्रिंट कर मतलब एड्रेस प्रिंट करके दे रहा था बेसिकली। अगर मैं सिर्फ एरे एस्ट्रिक एरे करता हूँ, इफ आई जस्ट प्रिंट आउट द एरे एस्ट्रिक, इट वाज गिविंग मी द फर्स्ट इंडेक्स।
if I do array plus 1 एंड उस कंप्लीट का एस्ट्रिक लगाता हूँ मैं, तो क्या देगा मुझे? नेक्स्ट एलिमेंट प्रिंट कर देगा, मतलब 0th एलिमेंट मुझे प्रिंट करके दे रहा है एरे डायरेक्टली, एस्ट्रिक एरे। उसके बाद में का एलिमेंट चाहिए होगा तो मुझे +1 करना होगा, दिस विल रिटर्न मी 2। उसके बाद में का एलिमेंट चाहिए होगा तो मुझे 2 करना होगा, तो दिस विल रिटर्न मी द थर्ड एलिमेंट। उसके बाद में का चाहिए लास्ट एलिमेंट चाहिए होगा प्रिंट करके, तो मुझे क्या करना होगा? 4। तो दिस विल रिटर्न मी द फिफ्थ एलिमेंट, दैट इज व्हाट? 5। इज इट क्लियर? Yes. Yes. In this similar way हमारा जो प्रीवियस वाला एग्जांपल था, दिस वाज इट, हम इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहा था मैं? सेम चीज कर रहा था। एरे, हमारा एरे का एड्रेस है +1, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में 0 रहेगा, मतलब हमको एरे का सबसे पहला वाला एलिमेंट आएगा जो भी हम एंटर करेंगे, ठीक है? पहला वाला एलिमेंट आएगा, उस पोजीशन पर हम जो वैल्यू ऐड करेंगे वो स्टोर होगी हमारी फर्स्ट पोजीशन पर, दैट इज इंडेक्स 0। फिर आई बढ़कर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, तो उस वाला इंडेक्सेस पर वैल्यूज ऐड ऑन होती जाएगी, राइट? इसको ज़्यादा बड़ी साइज होगी यार, इसमें एलिमेंट ज़्यादा भरने होंगे, 5 वैल्यू कर देते हैं अभी के लिए, ठीक है? तो इस तरीके से हम वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं, या फिर एक्सेस करने से अलावा हम कह सकते हैं वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं, यूज़र से इनपुट ले सकते हैं, सीन ले सकते हैं, ठीक है ना? ये एक तरीका होगा। इसको अभी प्रिंट आउट करके देखते हैं कि सेम तरीके से हम प्रिंट भी कर सकते हैं वैल्यूज़ को, ऐसा नहीं कि एक्सेस ही कर सकते हैं। प्रिंट करने के लिए मुझे सिर्फ एक कीवर्ड चेंज करना होगा, यहाँ पर सी आउट करना होगा, दैट्स इट। दिस विल गिव मी दी ऑल वैल्यूज प्रिंटिंग, और यहाँ पर आई विल हैव टू यूज वन एंडर, दैट्स इट। सो इफ वी जस्ट रन द कोड, it will ask us to first enter the 5 elements. This is the starting, ये print होकर आ रहा है मुझे यहाँ पर 10 पे, so just ignore this thing. We can do something like we can just comment out those things, whatever the rest couts are there, then run the code again, and it will directly ask me to enter the 5 values. So I will just, for an instance, I will enter 1 to 5, 1, 2, 3, 4, 5. And after, if I just press enter, it will return me the all 5 values in the similar way. See, इसने मुझे रिटर्न कर दी सारी की सारी 5 वैल्यू। ये एक तरीका है वैल्यूज को एक्सेस करने का और उनको प्रिंट करने का। द सेकंड वे इज, यू कैन इंस्टेड ऑफ दिस, यू कैन डू समथिंग लाइक दिस आल्सो, एरे ऑफ 5 डायरेक्टली इंडेक्सिंग से करो, जो कि हम अभी तक करते आ रहे हैं। तो ये थोड़ा आसान तरीका लगता है, तो हम इसको ही फॉलो करेंगे। इज इट क्लियर? ये भी मुझे सेम आउटपुट देगा। I just run the code, it will give me the same output. Is it clear, guys? Yes. Yes. Yeah. इसमें किसको भी डाउट है? किसी को भी कुछ भी डाउट है अभी तक? एरेस के अंदर हमने कॉन्स भी देख लिया, और सिमिलरली एक ही एग्जांपल में हमने ये भी देख लिया कि हीप के अंदर कैसे स्टोर करते हैं। तो अभी लिंक लग रहा होगा कि अभी तक हमने कैसे पढ़ा है, कॉन्स पहले, बाद में सबसे आखिर में पढ़ा था, उसके पहले पॉइंटर पढ़ा था, उसके पहले एरेस पढ़ा था। अभी हमने तीनों एक ही, मतलब जहाँ पर हमको 6 घंटे लगे थे, अभी हमने 1-1.5 घंटे में सारा कुछ समराइज कर लिया। तो आई होप यू आर एबल टू रिकॉल द थिंग्स ऑल्सो। हमने सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी है, एज सच हमने जो सेशंस थे उसमें काफ़ी इन डेप्थ देखा था चीज़ें, बट अभी हमने सिर्फ रिवाइज किया कॉन्सेप्ट को। तो अभी तक किसी को कोई ऐसा टॉपिक लगता है कि वो थोड़ा सा उस पर रिवाइज करने की ज़रूरत है, या फिर यू फील समथिंग? बोलो, जल्दी बोलो, टाइम कम है। हाँ या ना? कोई भी टॉपिक लगता है चैट्स में बोलो। नेक्स्ट टॉपिक पे, ये पहला वाला है। किसको कोई भी टॉपिक लगता है कि उसको रिवाइज करना है, या फिर थोड़ा सा चाहिए उस पर वार्म अप, कि नेक्स्ट टॉपिक पे जा सकते हैं? I will, if you will not type something or if you will not speak, I will just assume this to move on with. अरे बोलो, नेक्स्ट टॉपिक। Next topic और जाओ। ओके, फाइन। कल के सेशन में किसने बीच में छोड़ा था, या फिर किसने बीच में क्वेश्चंस को आधे जैसे एरर आ रहे थे वैसे लेफ्ट आउट कर लिया था?
सही है, तुम्हारी जगह पे मैं रहता तो मैं भी लेफ्ट आउट करता था और मेरा भी DSA में नहीं होता था कभी भी। एक्सपर्टीज ये जो एरर से भागता है उसका होता ही नहीं है कभी। तो कल कितनी जन नहीं थे जो बीच में से छोड़ के गए, या फिर जिनको ऑलरेडी वो क्वेश्चन आता हो वो भी लोग बताइए कि मेरे को ऑलरेडी आता है, तुम तो वहाँ पे वेल्लेपना कर रहे थे तो हम लेफ्ट आउट हो गए। ऐसे कोई लोग हैं जो लेफ्ट आउट हुए, वो सीरियसली एक बार बताना ना प्लीज़, मेरे को रिवाइज करनी है थिंग्स। कल का सेशन 2-3 ही क्वेश्चन थे बट इंपॉर्टेंट थे, एक बार रिवाइज कर लो सबको। करण पहले लेफ्ट आउट हो गया। अरे हाँ या ना, कल का 1-2 क्वेश्चन रिवाइज कर लो फटाफट, जल्दी बोला करो ऐसा। हाँ हाँ 10 बार भाव देने पड़ते हैं मेरे को, जैसे मेरी जरूरत है। कल का सेशन भी मैं ही लेफ्ट करूँ, पूछू भी मैं ही, ये रिवाइज करना है क्या भाई, ऊपर से 10 बार फिर से सेम चीज पूछू, मतलब सारी जरूरतें मेरी ही है मेरे को ही पैकेज लगेगा कल जाकर तुम के ऊपर का। ठीक है, तो एक बार कल के थिंग्स को रिवाइज कर लेते हैं। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, दोनों हमने कल जिन्होंने भी ऑलरेडी देखे हैं, थोड़ा सा अलग करेंगे आज, मतलब पहले सिमिलर पैटर्न में करेंगे जो कल फॉलो किया था, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लूंगा मैं आज का। किसको कुछ प्रॉब्लम है? किसने हाथ खड़ा किया? एनीथिंग वांटेड टू आस्क? I was not there in lecture yesterday because of some. Okay, fine. Okay. किसको कुछ कहना है क्या और? ठीक है, कहना तो डायरेक्टली माइक चलो करके कहते ना। ठीक है, तो अभी मैं मतलब मेरे को स्क्रीन शफल करनी होती है। तो या हमने कल बेसिकली 2-3 प्रॉब्लम्स देखे थे, जिसमें कि 2 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स थे, उसमें का एक पार्ट भी आज रिवाइज करना है, उसका अलग अप्रोच। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट वाज printing or storing or retrieving the first smallest element of the array and the second smallest element of the array. We have to access that, we have to search for it, and we have to show the same thing to the user, right? This is what the problem looks like if I have to explain it verbally. This is my array, kharab ganda array. This is my array. Yeah. ठीक है, तुमको array user से input लेना है, and instead of declaring a normal array, we will try to declare this array into the heap with the constant. Let's try to do it ना। तो इंडेक्सिंग सबको पता है, इसके अंदर लेट्स सपोज आपने 1 2 3 4 5 वैल्यूज डाल दी, तो इसके अंदर सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है? अरे बोलो। 1. 1, मुझे यहाँ पर 1 स्टोर करना है और उसको प्रिंट कर देना है, ठीक है। सेकेंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है? 2 इसको भी स्टोर करके सी आउट कर देना है। सबसे पहले तो इसमें से ये दोनों एलिमेंट्स को निकालना होगा बाहर और फिर उनको प्रिंट कर देना होगा। दैट इज व्हाट आवर अल्टीमेट एम इज, ठीक है। और लेट्स ट्राई टू डू इट फास्ट। या तो या let me just jot down the question over here. Question number first. Question is find the smallest and second smallest element in the given array. Smallest and element of the array. This is how the question looks like. तो सबसे पहले तो मुझे array की साइज लेनी होगी। So int size equals to साइज ही यूजर से लूंगा, से n साइज। ये बेसिक स्टेप्स है इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। प्लीज एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द एरे, ठीक है। उसके बाद सेम कर दी साइज। कल का जो इशू आ रहा था, जिन्होंने बीच में लेफ्ट किया था कि जो एरर आ रहा था, वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इफ़ यू ऑल्सो फेस द सेम एरर सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू टू गेट आउट ऑफ इट। तो देखेंगे उस चीज़ को भी। सी आउट कर रहा हूँ, फिर मैं सीन कर रहा हूँ साइज। उसके बाद मुझे एरे को डिक्लेयर करना है। आई एम नॉट गोइंग टू डिक्लेयर अ नॉर्मल एरे, इंस्टेड ऑफ दैट आई विल बी डिक्लेयरिंग इट इनटू द हीप। सो हाउ विल आई डू इट? इंट एस्ट्रिक एरे जो कि कॉन्स्ट रहेगा, एंड उसको मैं किसके अंदर स्टोर करूंगा? मेरे हीप के अंदर।
यहाँ पर क्या देना होगा मुझे इसके अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर? साइज। साइज, उसका साइज। एग्जैक्टली साइज। ठीक, एरे को मैंने डिक्लेयर कर दिया। अभी इसके अंदर लेनी है मुझे यूजर से इनपुट, तो वही सेम चीज फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस n की जगह मुझे यहाँ पर साइज लेना है सिर्फ, n की आदत हो गई है अभी। और सीन करना है मुझे array of i. This is how I will do it. Will this work? अरे बोलो, अरे हाँ या ना, ये वर्क करेगा इनपुट लेने के लिए? यस यस यस। यस इट विल वर्क, एंड ये सेम वैल्यूज को मैं प्रिंट आउट कर रहा हूँ। ठीक है, लेट्स ट्राई टू डू इट। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं, नॉर्मल जो जैसे करते थे वैसे ही किया, कुछ भी नहीं। सबसे पहले कितने एलिमेंट्स डालने हैं, 5 एलिमेंट्स डालने हैं, और इसके अंदर मैं एलिमेंट्स को डाल रहा हूँ। वही एलिमेंट्स मुझे सेम प्रिंट होगा, अगर कुछ भी नहीं किया ना है इसके अंदर। यहाँ पर एक प्रिंट आउट स्टेटमेंट भी देता हूँ, प्लीज enter the elements of the array। काफ़ी अच्छा है। हाँ, कल हमारा आई गेस 2 घंटे गए थे एक एरर में। तो कल क्या एरर आ रहा था, हमने क्या किया कि विदाउट टेकिंग द इनपुट ऑफ द साइज ऑफ द एरे वी डिक्लेयर इट। यहाँ पर मैंने उसको एरे को डिक्लेयर किया था somehow। तो अगर इस तरीके से हम चीज को करते हैं, इफ आई ट्राई टू रन द कोड, तो इट विल, देयर विल बी एन इशू, वो रन ही नहीं होगा कोड। मतलब सी आई एम रनिंग द कोड, मुझे कुछ भी अनएक्सपेक्टेड आउटपुट आएगा एंड समहाउ इट विल ब्रेक थ्रू। अभी सम पॉइंट के बाद वो एग्जिट हो जाएगा। तो इसी चीज को हमको लगा कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, वीएस कोड ही पागल है। तो we tried to did it in other platforms but it didn't work। क्यों? क्योंकि हमको, जब हम यहाँ पर कंपलसरी है ना, जब हम एरे को डिक्लेयर करते हैं तो उसकी साइज भी स्पेसिफाई करनी रहती है, नहीं तो नहीं होता है, वो वर्क ही नहीं होता है। तो वो साइज स्पेसिफाई हमने की नहीं उसकी। ये साइज तो फिलहाल सिर्फ एक वेरिएबल है, तो उसको एक्सेस, उसके अंदर वैल्यू कुछ पास नहीं की थी। दैट्स वाई इट वॉज वर्किंग समथिंग अनएक्सपेक्टेड, मिसलेनियस चीज़ें हो रही थी। तो इसीलिए सबसे पहले आपको एरे का साइज का इनपुट लेना है, और उसके बाद ही जाकर वो सेम चीज़, मतलब एरे की साइज आपको एरे के अंदर पास करनी हुई रहती है। सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। ठीक है, तो या तो सी आउट कर दिया, प्रिंट भी कर दिया। प्रिंट तो मुझे नहीं करना है, मुझे क्या करना है बेसिकली, सबसे स्मॉलेस्ट वाला देखेंगे हम सबसे पहले, कि सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को हम किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी ईजी है। सबसे पहले तो मेरे को एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट का एक वेरिएबल बनाने दो, जिसके अंदर मैं उस स्मॉलेस्ट एलिमेंट को स्टोर करूँगा। तो आई कैन जस्ट मेक इट एज स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज इक्वल्स टू, इसको मैं अभी इंट मैक्स करूँगा। अब क्यों करूँगा, ये आंसर मुझे आपसे चाहिए। यहाँ पर उसके लिए मुझे एक हाँ, कोई बता सकता है कि ऐसी कौन सी लाइब्रेरी है, ऑलरेडी सबको पता होगा, जिससे हम सारी लाइब्रेरीज को इंक्लूड कर सकते हैं। हेडर फाइल कौन सी की सारी लाइब्रेरीज को इंक्लूड कर bits/standard c++.h bits/standard std c++.h। This is how it looks like। तो अभी मुझे सेपरेटली इंट मैक्स को चला गया है, इंट मैक्स को मुझे अभी सेपरेटली सी लिमिट्स की लाइब्रेरी एंटर नहीं करनी है, या फिर इंपोर्ट नहीं करने का काम नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सारी हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर लिया, कल के इसमें डिस्कस किया था। तो जो लोग नहीं थे, तो ये ऐसी एक हेडर फाइल है जिसके थ्रू सारी की सारी हेडर फाइल्स हमको इंपोर्ट हो जाती है हमारे C++ के प्रोग्राम में। वी डोंट हैव टू import anything else like mat.h हो गया, उसके बाद iostream हो गया, उसके बाद c limits हो गया। आपको कुछ भी फिर import करने का काम नहीं, ये एक ही लाइन सब कुछ import कर देती है। so just remember it is like #include bits/std c++.h। ठीक है,
तो अभी उसी से हमने ये इंट मैक्स भी इम्पोर्ट, मतलब ये फंक्शन भी हमने वहाँ से लाया। इंट मैक्स के अंदर वैल्यू कौन सी रहेगी? व्हाट दिस वैल्यू विल बी? दिस it will be the biggest value in the C++. What it will be? Something like this? हाँ या ना? Yes. Yeah. Yes. Okay. तो ये कर लिया मैंने। अभी नेक्स्ट चीज़, इफ़ के अंदर मैं स्टेटमेंट लिखूंगा कि अगर जो मेरा स्मॉलेस्ट एलिमेंट के अंदर जो वैल्यू है, अगर वो क्या हो जाती है, अगर वो बड़ी हो जाती है किससे? मेरे एरे के अंदर की जो वैल्यू है 1 by 1, मतलब स्टार्टिंग में मेरे एरे के अंदर जो भी आप वैल्यू दे रहे हो 1 by 1, लेट्स टेक एन एरे ओवर हियर, कि मेरा अगर ये समथिंग, द एरे लुक्स समथिंग लाइक दिस. If I have an array which is having kind of this elements 0 1 2 3 4, this will be the indexing of it. So initially the index of I is 0, so the value which it will get at this point will be 1. so I के अंदर 1 वैल्यू रहेगी. तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट के अंदर तो ऑलरेडी काफ़ी बड़ी वैल्यू है. लेट्स अज्यूम फॉर अ व्हाइल कि इसके अंदर 5000 वैल्यू है. तो क्या 5000 बड़ी है आई के अंदर? क्या वैल्यू? एरे ऑफ आई के अंदर 1 वैल्यू. क्या है वैल्यू? क्या ये वैल्यू बड़ी है? विल दिस कंडीशन? Yes. 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 तो इस कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो देन आई विल राइट द लॉजिक. अभी लॉजिक क्या लिखना है उसी को देखेंगे. उस केस में मुझे लॉजिक लिखना है कि अगर वो वैल्यू बड़ी होती है तो कुछ नहीं, सिंपली उस वैल्यू को स्मॉलेस्ट एलिमेंट के अंदर डाल दो, बस, बाकी कुछ भी नहीं करना. तो अभी क्या होगा? अभी कुछ ऐसा होगा कि ये जो 1 वैल्यू है दैट इज द वैल्यू ऑफ एरे ऑफ आई, वो वैल्यू जाकर बस जाएगी किसके अंदर? स्मॉलेस्ट एलिमेंट के अंदर, राइट. तो अभी स्मॉलेस्ट एलिमेंट के अंदर जो इनिशियली वैल्यू थी 5000, वो चेंज होकर हो जाएगी 1. तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट के अंदर अभी वैल्यू है 1, ठीक है ना. फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 1, मतलब इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी 1. तो 1 के 1 इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू है? 2. तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है ना. स्मॉलेस्ट एलिमेंट के अंदर ऑलरेडी वैल्यू 1 है, तो फिर से कंडीशन चेक होगी, क्या 1 ग्रेटर देन है 2 से? No. हाँ यार. सो ये कंडीशन फॉल्स होगी, हम इसके अंदर कभी एंटर ही नहीं होंगे. उसी तरीके से फिर 3 होगा, ये वैल्यू आएगी. फिर 4 होगा, ये वैल्यू आएगी. फिर 5 होगा, 5 की वैल्यू आई. सभी केसेस में हमारा 1 बड़ा होगा. तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो हम इस लूप के अंदर कभी एंटर ही नहीं करेंगे. मतलब स्मॉलेस्ट एलिमेंट के अंदर वैल्यू 1 रहेगी. दैट इज व्हाट वी वांट, राइट. अरे हाँ या ना? Yes. Yeah, so we'll just see out smallest element handle की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. या थोड़ा सा डेकोरेट भी कर लेते हैं. The smallest element in the array is this. So yeah, एरर आ रहा है कहीं पे? नहीं. Yeah, something like this. Okay, enter the number of elements of the array 5. Enter the elements of the array 1 2 3 4 5. The center, the smallest element is 1, ठीक है. तो it's working fine. Enter the elements, it is 5, then 4 5 1 1 2 8 0. तो 0 आ रहा है, मतलब सही वर्क कर रहा है. सारे टेस्ट केसेस देखना, कल ऐसा हो रहा था कि 1 2 3 4 5 पे बराबर काम कर रहा था, उसके बाद हम दे रहे थे तो नहीं काम कर रहा था. तो सारे टेस्ट केसेस एक बार देख लो, 0 -1 जो भी है एक बार देख लिया करो. उस हिसाब से आपके कोड को ट्राई रन किया करो. और दिस इज क्वाइट फाइन फॉर नाउ. पहले एलिमेंट के लिए तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट हमको सेकंड एलिमेंट भी चेक करना है. अभी तक कितना क्लियर है? किसको इसके अंदर कुछ भी डाउट? थोड़ा सा 0.1%. No. All clear. सभी को क्लियर है? Yes. ओके. सो अगर क्लियर होगा तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज वी हैव ऑलरेडी retrieve the smallest element of the array. Now we want to
रिट्रीव द सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द अर्लियर। तो काफ़ी बेसिक लॉजिक है इसके लिए कि क्या कर सकते हैं हम कि सिमिलरली हमने एक के लिए फॉर लूप लगा दिया, दूसरे के लिए भी एक फॉर लूप लगा देंगे और फॉर लूप में सिमिलर कोड डाल देंगे। जो ऐसा कोड है ना सेम टू सेम डिक्टो सेम कोड रहेगा, सिर्फ इस इफ वाले कंडीशन में एक और कंडीशन ऐड कर देंगे। मतलब ये वाला कोड अगर डिक्टो लिखेंगे तो हमको फिर से 1 ही मिलेगा, राइट? अरे हाँ या ना? सेम टू सेम डिक्टो कोड लिखा ऐसा का यस ऐसा, तो यस हमको सेम ही आंसर मिलेगा 1, बट हमको 1 नहीं चाहिए। तो 1 नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, सिर्फ इस इफ वाले इसमें एंड लगाकर, ये सेम कंडीशन रहेगी ऐसी, सिर्फ एंड लगाकर क्या कर देंगे, यहाँ पर ऑफकोर्स स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं रहेगा, उसको हम सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट कहेंगे क्योंकि सेकंड फाइंड कर रहे हैं ना। तो सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट के अंदर अगर यही चीज लिखेंगे तो हमको फिर से 1 मिल जाएगा। एंड लगाकर क्या करेंगे कि कर देंगे एक चीज को कि जो भी आप एरे आई के अंदर से वैल्यू लेकर स्मॉलेस्ट एलिमेंट के अंदर स्टोर करोगे, सबसे पहले तो वो अगर सेम चीज करी हमने तो 1 ही आएगा। तो हम क्या करेंगे कि एरे ऑफ आई, लेट्स से अगर एरे ऑफ आई हमारे पास 1 आता है, वो सारे एलिमेंट्स को रिट्रीव करता है, सबसे छोटा एलिमेंट हमको 1 देता है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एक कंडीशन लिखेंगे कि एरे ऑफ आई जो भी इसके अंदर आप स्टोर कर रहे हो सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट के अंदर, उसको सिर्फ एक मेहरबानी करना कि वो जो एलिमेंट होगा वो बड़ा होना चाहिए किससे, हमारा फर्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट, दैट इज स्मॉलेस्ट एलिमेंट। उसके लिए मैं अभी SE लिख देता हूँ। बस इतनी सी कंडीशन करेंगे। इस कंडीशन को और थोड़ा एलाबोरेट करना चाहूँ तो लेट्स सपोज एग्जांपल के थ्रू मेरे पास ये एरे है 1 2 3 4 5, ठीक है ना, और यहाँ पर इंडेक्सिंग मतलब ये वाली एरे ऑफ 5 मतलब 0 1 2 3 4, थोड़ा ढंग का बना लेते हैं। लेट्स सी 1 2 3 4 5 ये मेरी वैल्यूज है, ये मेरी इंडेक्स है, ठीक है। हमने देख लिया ये वाला, हमको पता है कि अगर मेरे को स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है तो वो लॉजिक मुझे पता है। ये सिमिलर लॉजिक मैं रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक चीज इसमें करूंगा, वो मतलब कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट मुझे नहीं चाहिए, उसकी जगह मैं सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट लिखूंगा, मतलब एक और वेरिएबल क्रिएट करूंगा यहाँ पर इंट सेकंड स्मॉलेस्ट, उसके अंदर मैं मैक्स वैल्यू डाल दूंगा फिलहाल के लिए। और अगर सेम कोड लिखा और मैंने सिर्फ इस चीज को अपडेट किया, इस जगह पे मैंने सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट लिख दिया, तो मुझे उस एलिमेंट में फिर से 1 मिलेगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे सेकंड स्मॉलेस्ट चाहिए। तो मैं एक कंडीशन इफ के अंदर एक और कंडीशन डाल दूंगा कुछ इस तरीके की, एंड अगर मुझे 1 मिलता है स्मॉलेस्ट एलिमेंट तो मैं क्या करूंगा कि भाई एक बार चेक कर लेना कि वो जो n आपने i दिया है, मतलब 1 दिया है, वो मुझे नहीं चाहिए। तो क्या करना कि वो एरे ऑफ एक i को एक बार चेक कर लेना क्या वो बड़ा है किससे, मेरे स्मॉलेस्ट एलिमेंट से, क्योंकि तभी जाकर वो सेकंड स्मॉलेस्ट बनेगा, ठीक है ना। मैं बस उसको एक बार चेक कर लूंगा कि वो मेरी ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग स्मॉलेस्ट एलिमेंट है क्या उससे वो बड़ा है, अगर है तो ही कंडीशन के अंदर अब एंटर करो, और तब जाकर ही मेरा जो सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उसके अंदर वो एरे की आई की वैल्यू स्टोर कर दो। इसको एग्जांपल के थ्रू समझ लिया, इसको एक बार कोड के थ्रू और अच्छे से समझेगा जो मैं बोलना चाहता हूँ आपको बेसिकली। तो सेकंड स्मॉलेस्ट को स्टोर करने के लिए मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ सेकंड स्मॉलेस्ट, सेकंड एलिमेंट कहते हैं उसको, सेकंड स्मॉलेस्ट कहेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा, सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज इक्वल्स टू इंट मैक्स, ठीक है। सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर किया। मैंने आपको एक चीज़ क्या कही कि इस चीज़ को, ये लॉजिक आपको ऑलरेडी आता है तो इसको सिर्फ एक बार रिपीट कर दो। तो इसको रिपीट करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है, तो सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट को डाल दो। तभी पता है आपको, अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ फिलहाल के लिए, दोनों एलिमेंट्स को प्रिंट करना चाहूँ तो दोनों के अंदर 1 1 वैल्यू आएगी। एक बार चेक कर लो कि सेम लॉजिक है ना, दोनों के अंदर सेम ही वैल्यू आएगी। यहाँ पर द स्मॉलेस्ट एलिमेंट है द सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट, ठीक है। अभी अगर मैं इस चीज़ को प्रिंट करता हूँ तो दोनों लॉजिक सेम है, सिर्फ वेरिएबल्स डिफरेंस है, वेरिएबल से कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता, दोनों के अंदर सेम वैल्यू आएगी, दैट इज 1। तो एक बार देख लेते हैं कि प्लीज एंटर द एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो 5 एंटर कर दिया। प्लीज एंटर द एलिमेंट्स ऑफ द एरे 1 2 3 4 5, दोनों के अंदर 1 1 वैल्यू आ रही, जो मुझे नहीं चाहिए, बेसिकली नहीं चाहिए थी। सेकंड के अंदर मुझे 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू चाहिए थी, ठीक है ना।
स्मॉलेस्ट चाहिए थी एरे में से, बट 1 से बड़ी चाहिए थी। तो 1 से बड़ी चाहिए, मतलब अगर चाहिए तो उसके लिए मैं कंडीशन क्या लिखूंगा, सिंपल है, एंड क्या करना, 1 वैल्यू किसके अंदर स्टोर है, मेरी स्मॉलेस्ट एलिमेंट के अंदर, ठीक है ना। तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट से भाई क्या करना, जो मेरा एरे की वैल्यू है उसको क्या कर देना, बड़ा कर देना। तो एरे ऑफ आई, तो ये कंडीशन क्या करेगी बेसिकली, ये कंडीशन क्या करेगी कि मेरे एरे के अंदर, स्मॉलेस्ट एरे के अंदर ऑलरेडी 1 वैल्यू स्टोर है। तो जो इस वाले एरे से मुझे वैल्यू मिल रही है, दोनों एरे सेम ही है, मतलब इंडेक्सिंग से वैल्यू मिल रही है 0 1 2 3, वो चेक करेगा क्या वो 1 से बड़ी है। अगर बड़ी होगी तो ही हम इस लूप में एंटर करेंगे और सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट को अपडेट करेंगे, ठीक है ना। इफ आई जस्ट रन द कोड, I probably should get the second smallest element also. Enter the same values 1 2 3 4 5, एंटर करते हैं हमें 2 मिलता है, ठीक है ना। तो that is what we were expecting. Let's try to print for some other inputs also. मैंने एरे की साइज 5 डिक्लेयर कर दी और कुछ रैंडम वैल्यूज देता हूँ उसको। तो अभी मैंने 5 वैल्यूज दी है, तो अभी मुझे 2 वैल्यूज प्रिंट होकर आनी चाहिए, 2 and 3, that are the first smallest element is 2 and the second smallest is 3. Let's check it out if it is working fine or not. So it is working fine. लॉजिक समझ में आया, बाकी चीजें छोड़ो, दोनों चीजों का लॉजिक समझ में आया। Yes. 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 तो ऐसा है कि 1% भी, मतलब 1% है, मतलब 99% समझ में आया, बट 1% नहीं है, कोई ऐसा है? हाँ तो एक बार बोल दो यार, उसमें टाइम वेस्ट होता है। आप बोलते नहीं हो, चुप रहते हो, उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। उसी टाइम में मैं एक बार फिर से समझा दूँ शॉर्टकट में, कि नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव ऑन करें। शॉर्टकट में समझा दूँ, ठीक है। तो कुछ नहीं, नेक्स्ट। अरे 2 मिनट लगेंगे समझाने के लिए। हाँ समझा दो। ओके तो या हमने इस वाले लॉजिक में, तो हमको पता है कि हमको स्मॉलेस्ट एलिमेंट के अंदर 1 वैल्यू आई है, ठीक है। और मेरा एरे समथिंग लुक्स लाइक दिस 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ऑलरेडी मेरे को 1 वैल्यू प्रिंट होकर आ गई, तो मुझे सेकंड वैल्यू चाहिए, तो मैंने सेम कोड रिपीट किया था, तो फिर वो भी कोड मुझे 1 ही वैल्यू देता, बट मुझे 1 नहीं चाहिए, 1 से थोड़ी सी बड़ी चाहिए। क्या कहा मैंने चीज़, 1 नहीं चाहिए, 1 से बड़ी चाहिए, ठीक है ना। तो अगर मैं सिर्फ यहाँ पर 1 नहीं चाहिए लिखता था तो काम नहीं चलता था, इसलिए मुझे क्या लिखना पड़ा, क्या ये चीज़ सेम है। इफ आई से कि एग्जाम्पल की तरह समझाता हूँ कि पप्पाज एज नॉट इक्वल्स टू 30, पप्पाज एज शुड बी ग्रेटर देन 30। अगर मैं इस चीज को लिखता हूं तो ये चीज ऑलरेडी ट्रू हो जाती है क्या? मेरे पापा की एज 30 नहीं है, मेरे पापा की एज 30 से ज्यादा है। अगर मैं इस चीज को लिखता हूं तो क्या ये चीज ऑलरेडी सेटिस्फाई हो जाती है? यस और नो? Yes. तो देखो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ खुद का। हाँ यार मेरे इस पे मत जाओ। अगर कल आपको कोई आकर कहता है कि मेरे पापा की एज 30 नहीं है, और दूसरा आकर कहता है कि मेरे पापा की एज 30 से ज्यादा है, तो 30 तो नहीं है ना, तो ये कंडीशन तो ट्रू हो गई। बट आपको इस कंडीशन में एक और चीज पता चली कि 30 तो नहीं है, मतलब 30 से ज्यादा है, ठीक है ना। कटिंग नथिंग 30 के अबाव है। हालांकि ये कंडीशन आपको थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, ये चीज सिर्फ इतना बोल रही है कि 30 नहीं है, बस सिंपल, विषय खत्म। तो दोनों कंडीशन सेम ही है, बस ये वाली कंडीशन आपको थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रही है, जो कि हमको यहाँ पे चाहिए थी। हमको क्या चाहिए था कि सिर्फ नॉट इक्वल्स टू मत करो, स्मॉलेस्ट एलिमेंट के नॉट इक्वल्स टू, स्मॉलेस्ट एलिमेंट के ऑलरेडी अंदर 1 है, इसके अगर तुम सिर्फ ऐसा करते नॉट इक्वल्स टू तो नहीं चलेगा। नॉट इक्वल्स टू से बेहतर ये वाली कंडीशन मुझे अच्छी लगती है, मतलब ये वाली कंडीशन ज्यादा और सेंस बनाती है कि 1 से बड़ा एलिमेंट चाहिए, जो भी एरे आई के अंदर वैल्यू है वो मेरी 1 से बड़ी होनी चाहिए। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर एज
ग्रेटर देन, वो ट्राई करो, तुम खुद ट्राई करो, ऑलरेडी हमने कर किया था, तो इसलिए मैं आज सेम चीज़ आपको सिर्फ वर्बली बता रहा हूँ कि नॉट इक्वल्स टू करके देखना आता है तो बहुत सही है, अलग अलग वैल्यूज डाल के देखना, तब पता चलेगा। एक ही अगर इनपुट देते 1 2 3 4 5 तो हालांकि राइट आ सकता है आंसर, बट अलग अलग वैल्यूज पे देखना। तो नॉट इक्वल्स टू करते हो तो chances are you will not get the required output, but if you do this you will get the right output. I hope this thing is clear. अभी clear है? अरे हाँ या ना? Yes. या तो ये ऑलरेडी हमने कल देख लिया था, इसको रिपीट करने का काम एक ही था कि जिन्होंने बीच में लेफ्ट किया था उनके लिए। एंड सेकंड थिंग इज, इसका मुझे एक और एडवांस वर्जन लेना है इसी सेम क्वेश्चन का, क्योंकि हम कल नहीं ले पाए। दैट वाज कि we were trying yesterday to implement the same logic in only one loop. So what we did yesterday को नहीं पता था, बहुत ट्राई किया, हमको क्या करना था, एक ही लूप के अंदर सेम लॉजिक करना था, तो मैंने इसके अंदर सेम चीज लिख दी थी। इफ सेकेंड एलिमेंट इज ग्रेटर देन array of I एंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट सो स्टोर स्मॉलेस्ट एलिमेंट, तो हमने एक ही लूप के अंदर दोनों चीजें ट्राई करके देखी थी। लेट्स ट्राई इट वन मोर टाइम इफ इट इज वर्किंग और नॉट। Let's give it an input as 5 1 2 3 4 5। अभी हो रहा है शायद से, बट मैं एक और बार टेस्ट करना चाहूँगा। हाँ एक सेकेंड, 5 2 4 2 1। तो इस वाले केस में मुझे आउटपुट आना चाहिए था 1 and 2, बट मुझे आउटपुट आ रहा है 1 and 4। दैट इज नॉट, हाँ कौन क्या हुआ? हाँ लीना, हाँ बोलना। हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? Yes. हाँ Yes. हाँ तो रही। हेलो लीना, फाइन। ठीक है, कितना टाइम हुआ है? 11 5। थोड़ा एक्स्ट्रा लूंगा आज मैं, सॉरी। 4. हाँ अरे उतना चलता है। ठीक है, लेट्स कम बैक। तो हैव यू सीन दिस थिंग? वी वर फेसिंग द सेम इशू यस्टरडे कि एक एग्जांपल के लिए राइट हो रहा था 1 2 3 4 5 के लिए, बट फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल इट वाज नॉट वर्किंग राइट, सो देयर इज लैग। अब ये क्यों नहीं वर्क हो रहा था, एक बार खुद ड्राई रन करके देखना। ठीक है ना? तो इस चीज को एक और तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस। एक और आसान तरीका है कि हम एक ही फ्लो में पूरा का पूरा काम कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं, उसी चीज को हमको समझना है। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लॉजिक है, स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, 2-3 बार डिस्कस करेंगे तो चिल्ली मतलब आराम से हो जाएगा। स्टार्टिंग में मेरे को भी नहीं समझा था, ठीक है ना? तो सिंपल है। मैं क्या करूँगा कि एक एग्जांपल देता हूँ स्टार्टिंग में। लेट्स से आपके घर में अगर कोई छोटी बहन होगी, या फिर आपको कोई छोटा भाई होगा, या फिर आप खुद छोटे भाई होगे या छोटी बहन होगी, ठीक है ना? सिबलिंग्स वगैरह रहेंगे। तो मेरे घर पे कैसा है कि यूजुअली आई एम अ बिग ब्रदर, और घर पे थोड़ी सी रिस्पेक्ट भी है, तो सुनते हैं मेरी बात, मेरी बहन भी और मेरे घर वाले भी। तो यूजुअली अभी तक ऐसा हुआ है कि पहले बार मेरे को आती है यूज़ करने को चीज़, फिर मैं यूज़ करने के बाद घर पे जाती है और वो इवेंचुअली मेरी बहन के पास जाती है। और जब नई चीज़ लेनी रहती है तो वो भी पुरानी चीज़ बहन के पास जाती है। लेट्स से मैंने मेरा पहला टैबलेट लिया था व्हेन आई वाज इन 9th, ठीक है ना? तो मैंने तब एसोस का टैबलेट लिया था, तो वो मैंने करीबन 3 महीने यूज़ किया, ठीक है? फिर मेरे पास उससे अच्छा मोबाइल आ गया, ठीक है ना? लेट्स से ये 30,000 का था, अभी मेरे पास उससे अच्छा मोबाइल आ गया, ठीक है? 50,000 का मोबाइल आ गया, नहीं आया है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ये पुरानी चीज़ मैंने किसको दे दी? मेरे बहन को दे दी, हाँ? और ये नई चीज़ कहाँ पर आ गई? मेरे पास आ गई।
ठीक है ना, मतलब ये पहले मेरे पास था, बट अभी मेरे पास क्या आया, नया मॉडल आया, और पुरानी चीज़ किसके पास गई, बहन के पास गई। तो इसी इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित हम अभी ये सेम चीज़ लॉजिक सेम लॉजिक इसमें लगाएंगे स्वैपिंग का। वो कैसे लगाएंगे, काफ़ी इजी है। देखो पहले तो मैं स्वैपिंग का लॉजिक एक बार बता देता हूँ कि इसको डिस्कस करने से पहले कि स्वैपिंग मतलब बेसिकली आपको सी में भी होगा, जो लोग फर्स्ट ईयर के उनको स्टार्टिंग में क्या होगा कि स्वैपिंग का प्रोग्राम करो। तो वो कैसे रहता है एक बार बता देता हूँ, काफ़ी आसान है। आपको एक तीसरे पर्सन की हेल्प लेनी होती है दो चीज़ों को एक्सचेंज करने के लिए। सिंपल वे में अगर बताऊँ मैं, तो लेट्स से यू हैव टू कंटेनर्स, आपके पास लेट्स से यू हैव टू बीकर्स और कंटेनर, जो भी कहना है, बीकर्स कह लो या थोड़ा सा साइंटिफिक नाम लगता है। इसके अंदर ऑयल है, इसके अंदर अल्कोहल है, ठीक है ना, अल्कोहल जो भी स्पेलिंग है, LCHO अल्को, LCO अल्को, ALCO अल्कोहल, तो स्पेलिंग पे मत जाना, ठीक है ना। इसमें ऑयल है, इसमें अल्कोहल है। इमेजिन करो अभी आपको इसमें का इसमें डालना है, इसमें का इसमें डालना है, तो क्या आप किसी और चीज़ की हेल्प बिना लेकर ये चीज़ कर सकते हो? Can you do it? Instead of taking the help of anything else, can you do it? No. थोड़ा सोचो। हाँ, कर सकते हैं क्या? अभी वो थोड़ा कोई साइंटिफिक वाला लॉजिक मत देना कि कंसंट्रेशन वगैरह रहता है, कि हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली इसके अंदर डाल देंगे, फिर इसको हीट करेंगे, फिर जिसका भी टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा वो इसमें अंदर रहेगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा वो इवेपोरेट हो जाएगा, हम उसको कंडेंस करेंगे, किसी और कंटेनर में स्टोर कर लेंगे, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई रहेगा वो इसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, फिर हम उसको सेपरेट कर देंगे। ऐसा फालतू का लॉजिक मत देना। तो बेसिकली इसको हम कैसे कर सकते हैं कि ये मेरे पास कंटेनर है, ये मेरे पास एक और कंटेनर है, इसके अंदर ऑयल है, इसके अंदर अल्कोहल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तीसरी एक बीकर और लेंगे, तीसरा कंटेनर और लेंगे टेम्पररी बेसिस पे। अभी के लिए सिर्फ हमको टेम्पररी बेसिस पे चीज़ का जैसे काम होगा इसको हम फेंक देंगे, कुछ काम नहीं इसका। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऑयल डाल देंगे अभी के लिए, इसके अंदर ऑयल डाल दिया मतलब ये खाली हो गया, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। फिर इसके अंदर अल्कोहल डाल देंगे मतलब ये खाली हो गया। फिर ये खाली होने के बाद इसमें का जो हमने ऑलरेडी ऑयल रखा था सेपरेटली वो इसके अंदर डाल देंगे, इसका काम हो गया, इसको हटा दिया, हमारे पास एक्सचेंज होकर आ गया, ठीक है ना। तो सेम लॉजिक हम शॉपिंग में लगाते हैं, हम तीसरे वेरिएबल की हेल्प लेते हैं चीज़ों को एक्सचेंज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरे पास एक इंटीजर ए है, इसके अंदर 50 वैल्यू है, और दूसरा इंटीजर बी है जिसके अंदर 10 वैल्यू है, और मुझे इन दोनों को एक्सचेंज करना है, स्वैप करना है। तो मैं एक और इंटीजर बनाऊंगा जिसको अभी के लिए 10 कहते हैं, और विद द हेल्प ऑफ 10 आई विल एक्सचेंज द वैल्यूज। हाउ विल आई डू इट? सबसे पहले तो मैं 10 के अंदर वैल्यू डालूंगा ए की, मतलब सबसे पहले ए को खाली कर दिया, फिर ए के अंदर वैल्यू डालूंगा बी की, ठीक है ना। अभी ए के अंदर वैल्यू आ गई और मुझे बी के अंदर कौन सी वैल्यू डाली है, ए की वैल्यू डालनी है। तो ए की वैल्यू ऑलरेडी 10 के अंदर है, तो अभी मैं बी की वैल्यू 10 से उठाकर ए में डाल सकता हूँ, ठीक है ना। मैं सी आउट करता हूँ ए एंड बी, तो आप देखो कि पहले ए की वैल्यू क्या थी, 50 थी, बट अभी इट शुड हैव बिकम 10। लेट्स वेरीफाई इट। स्टार्टिंग में मुझे ए की वैल्यू 10 आनी चाहिए, मैंने प्रिंट किया ना किया, तो मुझे स्टार्टिंग में ए की वैल्यू 10 आ रही है और फिर 50 आ रही है, सो इट इज़ वर्किंग राइट। शॉपिंग में किसको कुछ डिफिकल्टी है? इसी है यज्ञेश, हाँ। यू कॉल्ड मी. मयंक, मी वॉशरूमला गेलते, मयंक मला बाहेरून बोलतोय, दादा तुला बोलवतोय. अरे तुझं असं रेज करत होते ना तू हँड, मला वाटलं काही प्रॉब्लेम आहे. मी नाही, मयंकच असेल मग. ओके
हाँ, तो मयंक कोण आहे? माझा छोटा भाऊ. ओके, तो पण C++ शिकत आहे का? चांगलं आहे, चांगलं आहे. हा तसं रेस होतो 2-3 वेळा झालेला, म्हणून म्हटलं की प्रॉब्लेम झाला ना. That's why. नाही नाही बोलतो. हाँ, तो स्वैपिंग का लॉजिक सबको समझा? इसमें कुछ डिफिकल्टी? Yes. इजी है, Yes. हाँ. इजी काफ़ी, मतलब तभी मैंने सोचा डिस्कस कर लिया एक बार. तो सिमिलर लॉजिक हम यहाँ पर लगाने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ पर कैसे कर सकते हैं, अभी देखना है इस चीज़ को कि कहाँ पर ये एग्जांपल ये वाला है, ठीक है? तो एक ही लूप के अंदर हम सारा कुछ रायता फैला देंगे. तो कैसे कर सकते हैं इस चीज़ को कि देखो भाई, हमारे पास ऑलरेडी अरे रुक जा, हाँ, स्मॉलेस्ट एलिमेंट को हमने इस तरीके से एक्सेस कर लिया. तो मैं क्या करूँगा, हमारे पास एक सेकेंड वेरिएबल भी, सेकेंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट करके, तो डायरेक्टली मॉडिफाई करने से अलावा, मतलब डायरेक्टली मॉडिफाई करने से पहले इसके अंदर बेसिकली क्या कर रहा है, मैं सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू डाल रहा हूँ. ये मेरा एरे है, लेट्स सपोज दिस इज माय एरे. 1 2 3 4 5 एंड अभी अगर लेट्स अज्यूम कि मेरे स्मॉलेस्ट एलिमेंट के अंदर है 1 वैल्यू है, ऑलरेडी छोटी वैल्यू है इसके अंदर, अज्यूम करो सिर्फ अभी के लिए, ठीक है ना? तो अगर ये कंडीशन कब ट्रू होगी, स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन एरे ऑफ आई. मतलब ये कंडीशन तभी ट्रू होगी जब आपको 1 से कम एलिमेंट मिलता है, तभी ये कंडीशन जाकर ट्रू मीट हो, मतलब ये कंडीशन जाकर मीट होगी, राइट? इज इट राइट? तभी हम इस इफ वाले लूप के अंदर एंटर करेंगे, ठीक है? तो फिलहाल तो मेरे पास नहीं है. लेट्स अज्यूम कि यहाँ पर मेरे को 1 से कम वैल्यू मिल जाती है 0, ठीक है ना? तो पहले तो 1 थी इसके अंदर, बट फिर हमको पता चला कि 1 से भी एक छोटी वैल्यू है 0. तो हम इसके लूप के अंदर एंटर हो गए और स्मॉलेस्ट एलिमेंट को 0 कर देंगे, राइट? दिस इज व्हाट वी वर डूइंग. यस. Yes. तो हम क्या करेंगे, एक स्टेप और करेंगे. मैंने क्या कहा था कि लेट्स से मेरे पास ऑलरेडी क्या था, एज उसका टैब था, और मुझे ये 0 मतलब क्या 0 मतलब मुझे और एक अच्छी चीज़ मिली, मुझे मोबाइल मिला है. तो मैं क्या कर रहा था कि जो मेरा एसूस का टैब था, मतलब 1 था, वो मेरी बहन को दे रहा था. बहन क्या है मेरे से मतलब छोटी है, मतलब मेरा सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट मेरी बहन है. तो मैं क्या करूँगा कि इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली इस वाली चीज़ को फेंकने से अलावा मैं क्या करूँगा, इसको असाइन कर दूंगा मेरी बहन के पास, दैट मीन्स माई सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट. और जो मोबाइल है, जो बड़ी अच्छी चीज़ मिली है मुझे, वो मैं खुद के अंदर डाल दूंगा. खुद के अंदर मतलब स्मॉलेस्ट एलिमेंट के अंदर. इसको एक बार कोड करके दिखाता हूँ, फिर इसको और एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे. तो मैं क्या कहना चाह रहा था कि डायरेक्टली अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू होती है, आपको समहाउ एक और एलिमेंट मिलता है कि जो आपका स्मॉलेस्ट एलिमेंट से भी छोटा है. ऑलरेडी 1 था, फिर आपको 0 मिल गया, मतलब छोटा हो गया, मतलब आपकी कंडीशन ट्रू हो गई. तो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली मॉडिफाइंग दी स्मॉलेस्ट एलिमेंट, मैं क्या करूंगा, जो ऑलरेडी स्मॉलेस्ट एलिमेंट के अंदर है, मतलब 1 ऑलरेडी था, तो 1 को मैं मॉडिफाई करने से अलावा मैं क्या करूंगा, उसको सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट के अंदर डाल दूंगा. किसको? स्मॉलेस्ट एलिमेंट को. मतलब इसके अंदर 1 था, वो जाकर किसके अंदर जाएगा, सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट के अंदर जाएगा. और उसके बाद सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट को और अच्छी एक वैल्यू मिली है जो कि 0 है, फिर उसको मैं अपडेट कर दूंगा सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट के अंदर. इतना समझ में आया? समझा? नहीं Yes. ओके, अब फिर से समझते हैं इस चीज को. ओके, एग्जांपल से समझते हैं कि मैंने क्या कहा कि ऑलरेडी आपके स्मॉलेस्ट एलिमेंट के अंदर ऑलरेडी लेट्स सपोज 10 प्रेजेंट है, ठीक है? और सेकंड स्मॉलेस्ट के अंदर एलिमेंट के अंदर लेट्स सपोज 20 प्रेजेंट है. तो ये सही है मेरा, मतलब स्मॉलेस्ट छोटा है सेकंड स्मॉलेस्ट है, तो ये कंडीशन ट्रू है. लेट्स से आपको नेक्स्ट एलिमेंट मिलता है 30. तो क्या इन दोनों को किसी भी आप अपडेट करना चाहोगे इन दोनों को इन एनी कंडीशन? नो. नो, यू विल नॉट अपडेट, राइट?
लेट्स से ये वैल्यू 50 हो जाती है, तो क्या आप अपडेट करना चाहोगे इसमें से किसी चीज को? Yes. सोचो, यस, किस चीज को अपडेट करना चाहूंगा मैं? Second smallest. सेकंड स्मॉल। तो इसको याद रखना, ये हमारी एल्स वाले कंडीशन में आएगा, ठीक है। लेट्स से मेरे पास अभी वैल्यू आ जाती है 8, तो क्या मैं इसमें से किसी चीज को अपडेट करना चाहूंगा? Yes. किस चीज को? Smallest element. तो मैं क्या करूंगा, अभी इस 8 को लेके जाऊंगा कहाँ पर? यहाँ पर। और इस 10 को क्या कर दूंगा, इसको डायरेक्टली फेंकने से अलावा मैं क्या करूंगा, इसको इस वाले एलिमेंट के अंदर स्टोर कर दूंगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास स्मॉलेस्ट एलिमेंट 10 था, मुझे इससे भी स्मॉलेस्ट मिला है 8, तो ये मेरा सेकंड स्मॉलेस्ट हो जाएगा ना इनडायरेक्टली। समझ रहे हो? आई गेटिंग द थिंग? अरे सिंपल है, एरे है मेरे पास। इमेजिन करो इस सिचुएशन को, हमको नहीं पता है आने वाले एलिमेंट्स क्या है, बट हमको पता है कि 1 2 3, यहाँ पर 3 के अलावा लेट्स सपोज यहाँ पर 2 लिख देता हूँ। इसके बाद मेरे को एलिमेंट्स नहीं पता है। पहले आपने 1 के लिए चेक कर दिया, आपको मिला कि n, हम आपने सबसे पहले i के लिए मतलब फर्स्ट वैल्यू के लिए चेक किया, 0th वैल्यू के लिए चेक किया, i इज इक्वल टू 0 के लिए चेक किया, आपको 1 मिल गया, आपने स्टोर कर दिया सेकंड फर्स्ट स्मॉलेस्ट में, तो यहाँ पर 1 था ऑलरेडी। फिर आपको 2 मिल गया, फिर वो 1 से बड़ा था तो उसने आपको सेकंड स्मॉलेस्ट पे कर दिया। फिर आपको क्या मिला, 2 मिला, तो आपको किसी में नहीं जाना। फिर लेट्स से आपको नेक्स्ट एलिमेंट मिला क्या, 0 मिला, तो 0 क्या स्मॉलेस्ट से तो छोटा है, स्मॉलेस्ट से क्या है 0 छोटा है, तो उस वाले केस में क्या किया आपने, स्मॉलेस्ट को अपडेट कर दिया 0 के साथ, और ऑलरेडी स्मॉलेस्ट के अंदर क्या था 1 था, तो इनडायरेक्टली अभी तक यहाँ तक आप देख सकते हो कि आपका सेकंड स्मॉलेस्ट क्या बन गया, सेकंड स्मॉलेस्ट क्या बनना चाहिए, 1 बनना चाहिए, जो ऑलरेडी मेरे स्मॉलेस्ट एलिमेंट के अंदर प्रेजेंट था। तो उसको मैं फेंकने से अलावा उसको डायरेक्टली से यहाँ से अगर मैंने अपडेट कर दिया, मतलब क्या कर दिया मैंने, स्मॉलेस्ट एलिमेंट को फेंक दिया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको फेंकने से अलावा क्या कर रहा हूँ, जो भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट के अंदर वैल्यू थी वो मैंने डाल दी किसके अंदर, सेकंड स्मॉलेस्ट के अंदर। और तब उसके बाद उसके अंदर डालने के बाद मैंने क्या किया, फिर जाकर स्मॉलेस्ट एलिमेंट को अपडेट किया, फिर जाकर मैंने इसके अंदर स्टोर की 8 वैल्यू। अभी समझा? समझा। ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। तो ये हो गया पहला वाला लूप। अभी यहाँ पर मेरी कंडीशन मतलब पूरी की पूरी ट्रू नहीं होती है, मतलब अगर मैं इतना लिखूंगा तो मेरा हाफ कोड राइट है, मेरे को एक और कोड लिखना होगा एल्स इफ में, एक और कंडीशन लिखनी होगी। अब ये कंडीशन क्या कहती है पता है, कि एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अभी ये कंडीशन तो आपको पता है कि इस वाले कंडीशन को कब ट्रू होगा और कब जाकर वैल्यूज को अपडेट होगी। लेट्स से एक बार मैं फिर से बताता हूँ कि मेरे पास स्मॉलेस्ट के अंदर 10 है, सेकंड स्मॉलेस्ट के अंदर 20 है, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन क्या कहती है, मेरी सबसे पहली वाली कंडीशन क्या कहती है कि लेट्स से आपके पास एक वैल्यू आती है i की 30, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या कहती है कि अगर स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन एरे ऑफ i, एरे ऑफ i क्या है 30, तो क्या 30 ग्रेटर है मेरा सेकंड स्मॉलेस्ट से? हेलो, स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है मेरा 10 है। हेलो, स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है यहाँ पर 10 है ऑलरेडी, आई की वैल्यू क्या दी मैंने 30, तो यहाँ पर वैल्यूज को पुट करो सिर्फ, स्मॉलेस्ट इज इक्वल्स टू 10 और आई की वैल्यू क्या है 30। क्या कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? false, इसीलिए मैं कहता हूँ कि साइड में अगर ऐसा नहीं समझता डायरेक्टली भैया, बिगिनर्स इन द सेंस जिनको अभी अभी स्टार्ट किया है, 10 दिन हुए 15 दिन हुए, हम इनको डायरेक्टली इमेजिन नहीं कर सकते। तो आप पेन और पेपर लेके बैठोगे तो आप डायरेक्टली फटाफट वैल्यूज को पुट करोगे, 10 क्या ग्रेटर है 30 से, हाँ है तो एंटर करेंगे, नहीं है तो नहीं एंटर करेंगे। तो वैसे आधे घंटे बाद रिप्लाई देते हो, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, हम इसके अंदर जाएंगे ही नहीं, ठीक है। लेट्स से अनदर एग्जांपल लेता हूँ मैं, अगर 15 होता है, आई की वैल्यू 15 होती है, तो क्या कंडीशन ट्रू होगी? फिर से वैल्यू डाल के देखो, स्मॉलेस्ट एलिमेंट के अंदर देखो 10 डाल के
और एरे के अंदर देखो 15 डाल फॉल्स होगी। फॉल्स हो गई, बट ये ट्रू होनी चाहिए थी ना, क्योंकि सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट 20 से तो कम है, ये तो अपडेट करना चाहिए था, हमने इसके अंदर एंटर करना चाहिए था ना। अरे हाँ या ना? हाँ तो नहीं हो रहे हम एंटर, तो अभी इस वाले हमको एक और कंडीशन लिखनी होगी। क्या कंडीशन लिखनी होगी? कि अगर मेरा जो सेकेंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, जो मेरा सेकेंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, अगर वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है किससे? एरे ऑफ आई से। तो उस वाले केस में क्या करना, सेकेंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट के अंदर क्या डाल देना? एरे ऑफ आई डाल देना। एक्सप्लेन करूंगा इसको भी। अरे सेम चीज जो हम यहाँ पे कर रहे थे ना, वही सेम चीज कर रहे हैं हम यहाँ पे। अगर जो सेकेंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट आता है, मतलब सेकेंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट के अंदर ऑलरेडी आपके पास 20 वैल्यू थी और अभी आई की वैल्यू क्या आ गई? 15 आ गई। तो यहाँ पे डाल के देखो, सेकेंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो गया 20, आई की वैल्यू हो गई 15, तो ये कंडीशन क्या हो गई? ट्रू हो गई। तो हम क्या कर रहे हैं, इस लूप के अंदर एंटर कर रहे हैं और सेकेंड स्मॉलेस्ट को क्या दे रहे हैं? 15 दे रहे हैं। यही चीज कर रहे हैं हम इफ एल्स में। इसको एक बार लिख लेता हूँ मैं अच्छे से, कि कोड के अंदर लिख लिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं सेकेंड इफ एल्स में लगा रहा हूँ, इफ एल्स में लगा रहा हूँ इफ एल्स इफ अगर मेरा जो सेकेंड स्मॉलेस्ट है, सेकेंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या हो जाता है, अगर बड़ा हो जाता है किससे? एरे ऑफ आई से। तो उस वाले केस में क्या करना, व्हाट यू विल डू कि सेकेंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट को क्या करना, आप एरे ऑफ आई से रिप्लेस कर देना। सिंपल है। इतना समझा जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया? यस हाँ। राइट। बट ऐसा नहीं हो सकता क्या, इस वाले कोड में अगर आप इसको रन करोगे ना, तो आपको सेम आउटपुट आएगा। मतलब सेम मतलब आई गेस कि दोनों ही, मतलब आपका जो अगर एरे 1 2 3 4 5 है, तो आपको दोनों ही केसेस में, दोनों ही इसमें 1 1 आउटपुट आएगा। क्यों आएगा वो बताऊंगा, पहले रन करके देखो। इतना लॉजिक समझा होगा तो इतना लॉजिक को पहले प्रिंट कर लेते हैं, फिर आगे का देखेंगे। 5 वैल्यूज एंटर कर रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 5, 1 2 आ रहा है। एक बार फिर से चेक करना अलग वैल्यूज के लिए, 2 3 5 0 7। इस केस में भी बराबर आ रहा है, बट थोड़ा कहीं ना कहीं पे गलत जा रहे हैं हम। मतलब लॉजिक बराबर है अभी तक, बट सारे कंडीशंस के लिए एक बार ट्राई करना होगा। 2-3 कंडीशन के लिए ट्राई करके नहीं चलेगा। 5 वैल्यूज एंटर करते हैं। मेरे पास है 2 2 1 1 0 5। अरे ये तो सारे के लिए वर्क कर रहा है, बट यहाँ पर एक और कंडीशन आनी चाहिए। वी विल सी इट। यहाँ पर एक और कंडीशन आनी चाहिए, दैट इज एंड क्या थी कंडीशन? जो कि 1 से इक्वल नहीं होगी वो ना। हाँ वही वाली जो हमने प्रीवियस में देखी थी ना, कि एरे ऑफ I shouldn't be equals to smallest element. That is what the condition should be. But without condition भी बराबर वर्क कर रहा है। The condition was something like this. Array of I जो था वो it should always be greater than smallest element. That is what the condition is basically. यहाँ पर array है क्या? ये वाली कंडीशन थी। तो ये वाली कंडीशन क्या कर रही है बेसिकली, हमने ऑलरेडी देखा है चीज़ को पहले वाले एग्जांपल में, कि एरे ऑफ आई जो भी आप यहाँ पर आएगा, जो भी एलिमेंट यहाँ पर आपको आएगा, वो हमेशा बड़ा रहना चाहिए किससे? स्मॉलेस्ट एलिमेंट से। बट हालांकि हम इस कंडीशन को नहीं लिख रहे थे, तब भी हमारा सिमिलर आउटपुट आ रहा था। सी अगर let's in the starting we will give all the same elements, and in the end we will try to
चेंज द आउटपुट। लेट्स से कि 5 एलिमेंट्स है या फिर 10 एलिमेंट्स ले लेते हैं, 1 2 5 3 0 5। स्टार्टिंग में मैं कुछ और लूँगा, 9 5। उसके बाद 1 0 3 2 5। कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गए क्या? नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तभी बराबर दे रहा है, ये सारे इनपुट्स को बराबर दे रहा है। ठीक है, तो अगर सारे इनपुट्स को बराबर दे रहा है तो यहाँ यहीं पे लॉजिक समाप्त होता है। बट ठीक है, फिर इतना ही हो रहा है तो दिस इज फाइन। इतना समझा सबको? इट्स गिविंग द राइट आउटपुट टू अस, सो ठीक है ना। फिर Yes. क्यों ही फालतू कंडीशंस को बढ़ाना। ऑल्सो ट्राई टू लाइक, आप खुद भी ट्राई करके देखना, अगर जिसको भी कोड समझाए इजी है, इतना कुछ लॉजिक नहीं। एक बार पेन पेपर लेके नोटबुक पे करोगे तो समझ जाएगा। ठीक है, तो इस कोड को क्या करना, आप एक बार अलग अलग जितने भी डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स आप दे सकते हो वो डाल के देखना। देयर विल बी सम पॉइंट कि आपको एक आधा एग्जांपल मिलेगा जहाँ पर ये कोड बराबर वर्क नहीं करेगा। अगर वो एग्जांपल मिलता है आपको तो मुझे मैसेज करना, देन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास कि हमको ये कंडीशन क्यों डालनी होती है, ये वाली कंडीशन विल डिस्कस इट। फिलहाल के लिए अभी इतना सही है। अरे हाँ या ना? Yes. शुड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल, या फिर इसको और डिस्कस करना है? अरे हाँ या ना? सब जन बोला करो, एक जन बोलता है, एक लड़की बोलती है, एक लड़का बोलता है, बाकी सारे चुप रहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल लिया जाए या फिर थक गए हो? बोर हो रहा है क्या? नेक्स्ट एग्जांपल लूँ या फिर ना लूँ? If yes, type yes in the chat. If no, type no in the chat. Totally understand. Respect everyone's feedback. ठीक है, कल करते हैं एक एग्जांपल, कल करते हैं। सिर्फ मैं इसको आपको एक ऑलरेडी जो कल के सेशन में थे उन्होंने वो सेम एग्जांपल है, उसी को मैं एक्सप्लेन करने वाला था कि बेसिकली हमने देखा था रिवर्स करने का एरे, ट्राई टू रिवर्स द एरे। रिवर्स आप डायरेक्टली प्रिंट करने के लिए तो एक लूप लगाकर प्रिंट कर दोगे, ठीक है। दूसरा हमने उसी चीज को मॉडिफाई किया था कि हमने क्या किया था कि उस एरे का एक डुप्लीकेट एरे बनाया था और जो ओरिजिनल एरे था उसका रिवर्स करके डुप्लीकेट एरे में स्टोर किया था। कल तक इतना किया था हमने। अभी जो आज के सेशन में करने वाले थे वो था कि जो एक्चुअल एरे है, जो ओरिजिनल एरे है, उसी को कैसे रिवर्स किया जाए, उसी के अंदर रिवर्स एलिमेंट को स्टोर किया जाए। दैट वाज द एक्चुअल प्रॉब्लम दैट वी वर सॉल्विंग। 50% ऑफ द टास्क हमने ऑलरेडी यस्टरडे कर लिया था, जो कि था प्रिंट करना रिवर्स एरे को, जो कि काफ़ी इजी ऑलरेडी देख लिया हमने काफ़ी प्रीवियस सेशंस में भी। सेकंड चीज़, ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग एरे है आपके पास ओरिजिनल एरे, उसका रिवर्स एरे बनाना, न्यूली रिवर्स एरे बनाना, ठीक है। और एक इसका एडवांस आता है, वो मतलब कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आपका एरे है उसको ही रिवर्स करना और उसी रिवर्स एलिमेंट को ओरिजिनल एरे के अंदर स्टोर कर देना। गेटिंग द पॉइंट? तो ये आज का डाउट था। अगर आप इसको सॉल्व कर पाते हो तो इट इज वेल एंड गुड, ट्राई इट। इफ नॉट, आई विल ट्राई टू डिस्कस इट इन टुमारोज 15 minutes, in the previous 15 minutes. But if you already have the idea, kind of, it would be easy for me to explain. So that's it for today's session. I hope you understand. I hope you got all the things. If no, they can remain in the meeting. If yes, they can leave the meeting. Have a nice day. Tomorrow we'll be having the same class at the same time. Not at the same time. Tomorrow we'll be having it on sharp 9 p.m. So yeah, see you in tomorrow's session. Good night. Bye. Bye. Bye, good night. Good night. Good night. Good night.
हाँ जी बोलो. हॅलो, तो एकदा मागचा कोड दाखव ना, फर्स्ट पण. ठीक है. हा नाही, तो फर्स्ट क्वेश्चन करत होता आपण तो. हाच आहे ना फर्स्ट क्वेश्चन. नाही नाही, हा नाही, फर्स्ट क्वेश्चन आपण आत्ता केला जस्ट तो. एकच क्वेश्चन केलं ना आपण आता. हो, याच्यात तो अच्छा. स्वॅपिंगसाठी टाकलंय ना आपण इफ मध्ये, हम्म. सेकंड स्मॉलेस्ट इक्वल टू स्मॉलेस्ट. राईट. तर त्याचं काही आपण आय इज इक्वल टू 0 पण करू शकतो ना. आय इज इक्वल टू 0. हा करू हो, शकतो त्याच्या जागी म्हणजे म्हणजे बट फॉर प्रिफर लूप करायचं रिसेट करण्यासाठी. हे यूज करू आपण. आय इज इक्वल टू 0 पण करू शकतो. ओके, काल तेच मी ट्राय केलं, आय इज इक्वल टू 0 म्हणजे फॉर लूप रिसेट होईल ना त्याच्याने. ओके, तर सेम आउटपुट येत होतं, म्हणजे राईट येत होतं आन्सर. हा तेच करू शकतो. ओके, बस तेच कन्फर्म करायचं होतं. ओके, बाय बाय. चालेल नाही चालेल. नाही, गुड नाईट. हो.